Lovely Kanpur is known as the youth hub. What better place for me to start off this special UP Bipole segment right here from Moti Jheel, the Kargil Park. Behind me is the statue of Swami Vivekananda, who is known to be an advocate of the youth, who's urged the youth to channelize their energy into nation building. And trust me, I've spoken to a whole bunch of the youth here in Kanpur and surrounding areas, basically more importantly ahead of the Sisamau Bipoles, and they have a lot of opinions to share on the current netas and the political parties who are fighting this fight. For the Samajwadi Party, it's very important that they retain the Sisamau seat, which they've held for 30 long years, because this reinforces their urban credentials. For the BJP, of course, they want to crack into the Samajwadi Party stronghold, and you have none other than Chief Minister Yogi Adityanath himself, who's landed into Kanpur to carry out a rally and campaign for his Sisamau candidate. Very interesting fight. This will really show who's battle ready. The results here will show who's battle ready for the upcoming electoral cycle. Join me, Nabila Jamal, on this special segment to bring you voices and the pulse on ground, Uttar Pradesh. The three-time MLA of Sisamau, Irfan Solanki, is currently in prison as he is fighting a legal battle. He's got some criminal charges filed against him, and now the Samajwadi Party has decided to field Irfan Solanki's wife. In fact, Naseem Solanki, who I'm following up until the Samajwadi Party office, they've held this seat of Sisamau for nearly 15 years. What's going to happen this time around? Will really Naseem be able to appeal to the crowds of Sisamau, convince them that she is the best alternative to her husband? Follow me. The Sisamau seat is surely one that the Samajwadi Party is trying to defend. They've held it for 30 years, and I did mention it's Naseem Solanki, Irfan Solanki's wife, who's currently trying to learn the ropes of politics. She's standing for the first time after her husband was imprisoned in a criminal case. I'm going to try and get her attention to get her take on how she's going to woo voters this time in Sisamau. Naseem ji, ये बार आप खड़े हो रहे हैं. आप कॉन्फिडेंट हो कि लोग तसल्ली होंगे कि आप इरफान सोलंकी की जगह ले सकते हो? जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं. और वही सिसामऊ की जनता है जिन्होंने 4 बार मेरे पति को जिताया है, और ये इस बार भी चुनाव उन्हीं का है. बस चेहरा मेरा है, नाम मेरा है, पर चुनाव इरफान सोलंकी का है. बहुत सुनाई दे रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा काम कर रही है यहाँ पर. थोड़ा अब योगी आदित्यनाथ का रैली भी है, तो ये बात थोड़ा टक्कर की लड़ाई हो सकती है. लड़ाई तो हर बार टक्कर ही की होती है, पर फिर भी जनता को मालूम है जो हकीकत है. ये तो जनता जनार्दन वही तय करेंगी और वही राजा बनाती है. अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार हमारे परिवार में जो इतने साल से सीट है, तो कोई चीज ऐसी पसंद आती है जनता को. मेरे हस्बैंड में काम भी कराया है ना, और अल्लाह का जो, पर ये 2 सालों में जो दिक्कतें परेशानी हुई है वो जनता उससे बखूबी वाकिफ है. ये बीजेपी बोलती है कि गुंडा एक्ट में अरेस्ट है, तो ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है. थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे इरफान सोलंकी के ऊपर क्या आरोप है? ये मुझे बहुत ज्यादा राजनीति पता नहीं, मैं बहुत नई आई हूँ, पर मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वो बेकसूर है. बिना किसी खता के उनको जेल भेज दिए गए हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे हुए. मुकदमा भी वो हुआ है उस प्लॉट का हुआ जो प्लॉट हम लोगों के पास रजिस्ट्री है, उसके पेपर है. जिन्होंने मुकदमा कराया उनके पास कोई उसके एविडेंस नहीं, पेपर नहीं है. वो कह नहीं सकती कि वो प्लॉट मेरा है, पर मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार कह सकता है कि हाँ वो प्लॉट हम लोगों का है. तो इसमें बहुत ज्यादा मैं बहस नहीं करें. जनता ने 2022 में भी दिखाया था और इंशाल्लाह 2024 में भी दिखाएगी कि मेरा विधायक एकदम ठीक था. जनता उस समय भी गलत नहीं थी, जनता आज भी नहीं गलत होगी इंशाल्लाह. This hot seat of Sisamau, the BJP is doing all that it can to actually woo the voters here in Kanpur. Here's Yogi Adityanath's convoy. He's right here in Kanpur trying to reach out to the people. That's the car there, Yogi Adityanath, who's just passed. He's trying to reach out to the people of Kanpur ahead of Sisamau's bipoles, because the BJP is quite certain. They want to gain back voters' confidence after the 2024 dip in the Lok Sabha polls for Uttar Pradesh. It seems like Yogi Adityanath not leaving any stone unturned to ensure that this bipoles
is really a teaser, basically a hit for them, and it is a teaser on what's to come for 2027. Yogi Adityanath is certain that he wants to ensure that the BJP itself has a good hold and a grip of Uttar Pradesh, and this bypolls he's almost set out to prove himself that he is certainly the man for UP. Sisamau is known to be a Samajwadi Party bastion, but the BJP doing its best to breach this hole here. Suresh Avasthi, who's already been a candidate for the BJP here previously, he lost with a very narrow margin. So the BJP pinning its hopes heavily on Suresh Avasthi here. Avasthi ji, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि ये बार आप जीतोगे? एक्चुअली जब मैं 17 में चुनाव लड़ा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही 12 से 17 के बीच में। उसके बाद मैं 2% वोट मुझको कम होने के कारण मैं थोड़े मतों से रह गया, और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ की 7 वर्षों की सरकार और केंद्र की 10 वर्षों की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक धरातल तक भेजी हैं, मुझे लगता है कि उसका नीचे तक धरातल पर बहुत असर है, और इसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक लंबे मार्जिन से ये सीट जीतने जा रहे। ये बोलते हैं कि इरफान सोलंकी को झूठे केस में गिरफ्तार किया है। देखिए, कानून का दायरा है, और जिस तरीके से हम सब लोगों ने उस मोहतरमा को नजीर फातिमा का जो हमने वीडियो देखा है, और जिस तरीके से वो अधिकारियों के चौखट पर न्याय मांगने के लिए परेशान घूमा करती थी, वो झूठा नहीं हो सकता। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो शायद उस नजीर फातिमा को न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के नाते उसे न्याय मिला है और कानून अपना काम कर रहा है। जी, जो इरफान सोलंकी की बीवी समाजवादी पार्टी अभी सोचती है कि उनको सिंपैथी वोट्स मिलेंगे क्योंकि उनके पति वो बोलते हैं कि फ्रेम्ड है। देखिए, अब उनका सोचना है, वो अपनी तरीके से सोचें, लेकिन निश्चित तौर से आपराधिक गतिविधियों में जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने लोकतंत्र की शपथ ली थी, उस शपथ में उन्होंने जिस तरीके से अलोकतंत्र का गला घोटा है, उससे निश्चित तौर से है कि अब उनको सिंपैथी कहीं से नहीं मिलने वाली है। और ये चीज़ अखिलेश जी जब सभा करने आए थे तो तमाम कुर्सियां चैनल में मैंने देखी कि तमाम कुर्सियां खाली हैं, समाजवादी पार्टी को आज समर्थन नहीं मिल रहा है। ये बार 2024 में लोकसभा में बीजेपी ऐसे हारी क्यों? देखिए, उसके पीछे कई कारण हैं। पार्लियामेंट का जो चुनाव था, वो तमाम झूठे और मक्कारों ने जिस तरीके से 8,500 रुपया खटाखट और संविधान खतरे की बात कर जिस तरीके से बस्तियों में गलत तरीके का भेजा था, उससे उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर से सीसामऊ की जनता वो जान चुकी है कि ये सब झूठे मक्कार लोग हैं, इनकी बातों में नहीं फंसेगी। ये बार ये लोकल इश्यूज, आप लोकल चैलेंजेस क्या हाईलाइट करना चाहते हो जो सीसामऊ में? और कानपुर ऐसा इंडस्ट्रियल हब था, अभी कानपुर में वो जैसे फॉर एग्जांपल इमली मिल, लाल इमली मिल, उसको अभी तक रिवाइव किया नहीं गया है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस भी किया है, तो ये इंडस्ट्रियल हब के लिए क्या करता है बीजेपी? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है मलिन बस्तियों का क्षेत्र है, और लंबे समय से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात आ रही है। मैं तमाम जगहों पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मेरी चर्चा हुई है। मैं पूजनीय महाराज जी से आग्रह करूंगा कि जो मलिन बस्तियां हैं, जिनका गजट ऑलरेडी हो चुका है सरकार के द्वारा, उनका मालिकाना हक देने में जो अड़चन आ रही है उसको दूर करके मालिकाना हक दिया जाए। Businesses in Sisamau, let me try and get one of the vendors here, the markets. यहाँ पर बिजनेस कैसा चल रहा है जो सीसामाऊ में? बहुत ही अच्छा हमारे मार्केट में मेरा बिजनेस है मैडम। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, रिटेल काउंटर से मार्केट है, और हमारे यहाँ हर चीज की वैरायटीज मिलती है, लेडीज है, जेंट्स है। ठीक है, मगर बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? कोई अब सीसामाऊ का बाइपोज आ रहा है, कुछ इश्यूज? नो मैडम, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है यहाँ? नहीं, सबने अच्छा किया है। हम व्यापारी हैं, हम सभी को समर्थन करते हैं, और सभी जो भी हमारी सेवाएं करेंगे, अच्छी सेवाएं करेंगे, हम सभी को समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर बाइपोज है, कुछ मांगना चाहते हो सरकार से? मतलब जो भी जीते यहाँ क्या मांगना
जी, हम अपने विधायक जी से निवेदन करते हैं, हमारा एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कुछ सुविधाएं हमें जन सुविधाएं चाहिए, जैसे महिला टॉयलेट नहीं है, पार्किंग्स नहीं है हमारे यहाँ। हमारे दूर दूर से कस्टमर्स आते हैं, हमें पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, महिला टॉयलेट्स की प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके के 2-2, 3-3 छोटे इशूज हैं, वो हम माननीय अपने विधायक जी से निवेदन करते हैं, कृपया उसे पास कराने की कृपा करेंगे। There was one controversy that really hit headlines. वो था आपने जो एक मंदिर में पूजा किया था उसके ऊपर आपके ऊपर फतवा जारी किया गया था। क्या आप बोलना चाहोगे उसके ऊपर? कोई बात नहीं, आप राजनीति में आ गए और बहुत सी चीजें होती है। मंदिर भी जाना होता है इंसान को, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी। हम कल गए थे गुरुद्वारे भी, हमने वहाँ बैठ के उन लोगों के साथ जो है खाना भी खाया, लंगर जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो बहुत सी चीजें ऐसे काम करना होता है इंसान को, क्योंकि हमें वही लोग चुन के हमें एक जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। जो है आप लोगों की इतने लाख की आबादी में हमें एक इंसान को वो चुन रहे हैं, तो शायद कोई वजह रही होगी। या फतवा के ऊपर क्या बोलोगे आप? फतवा देखिए ऐसा है कि जो चीजें हुई थी, फतवा जो आया, मुझे उसका आइडिया नहीं था कि ये हो सकता है। मुझे तो लगा था कि उनके धर्म के गुरु जो नाराज हो जाएंगे कि हमारे मंदिर में ये हुआ है। उन्होंने भी फिर पूरा क्लेंजिंग रिचुअल किया था उसके बाद। कोई बात नहीं, वो तो हमारे राष्ट्रपति जी गए थे तब भी हुआ था, तो मैं तो फिर भी बहुत छोटी सी हूँ, कोई उसमें इशू नहीं है। The one controversy that really shook the Samajwadi Party candidate's prospects here is probably the controversy around her performing puja at a temple, the Van Khandeshwar temple here in Sisamau, where she carried out a puja and a fatwa was initiated against her by some of the Maulanas who said that a Muslim cannot perform puja. And soon after the fatwa was issued, you had the priest here, the Pandit is right here with me, the priest who carried out the Shuddhikaran, purifying the temple right after she performed the puja. So this really turned out to be a controversy that kind of shook the Samajwadi Party's core vote base, which is the Muslims in the Sisamau constituency. Pandit ji is right here with me. Sir, आपने जो purification किया temple का, नसीम सोलंकी ने यहाँ पर पूजा किया, उसके बाद आपने शुद्धिकरण किया, क्यों किया ऐसे? शुद्धिकरण नहीं, शुद्धिकरण नहीं, अभिषेक, गंगाजल से अभिषेक। शुद्धिकरण क्यों कर सकते? उनको शुद्ध कौन कर सकता है? हम लोगों ने अभिषेक किया हुआ था, इसलिए किया था। क्यों किया था कि उन्होंने जो है उनके मौलवी, हम लोग तो स्वागत करते हैं, सनातन धर्मी हम लोग सबका स्वागत करते हैं, सारे धर्मों में जाते हैं, सारे धर्मों का स्वागत करते हैं, लेकिन उनके ही धर्मगुरु ने जो है उनके खिलाफ जो है यहाँ मंदिर आने पे फतवा जारी कर दिया था कि आप जो है दूसरे धर्म में क्यों चली गई, मूर्ति पूजा हम लोगों के हराम है, मूर्ति पूजा क्यों कर दी है? तो मूर्ति पूजा आपने की है, उसका हमने विरोध, हमने कहा हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप लोग उसका विरोध कर रहे हो, तो थोड़ा कहीं से मन में ठेस पहुंची थी, तो उसका हम लोग बाबा का अभिषेक किया था कि बाबा आप नाराज ना हो, उनको भी शुद्ध बुद्धि दीजिए, हम लोग भी सब बुद्धि दीजिए। Tea is accompanied by a lovely bun which is layered, literally slathered with butter. Tea time conversations in Sisamau. Let's see if we have some opinions here. Sir, आप ये चुनाव अब बाइपोल आ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? इम्पॉर्टेंट तो ये चुनाव क्या सभी चुनाव होते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो देश है वो जिन चीज़ों पे चल रहा है उन चीज़ों पे ना चल करके देश की तरक्की के लिए हो, लोगों की नौकरियों के लिए हो, लोगों के बिजनेस आज जो इतने ख़राब होते जा रहे हैं उसके लिए हो। ये जो इश्यूज चल रहे हैं चुनाव के लिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देना चाहते हो? एग्जाम्पल आप तो खुद ही हैं पत्रकार, सारी चीज़ें आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है देश में, देश को किस राह पे ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ा इशू आप क्या बोलते हो यहाँ सीसामाऊ में? भाई सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे अराजकता फैली हुई है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, चुनाव को जीतने के लिए, जिस तरीके का ये माहौल बनाने के लिए, ये चीज आज तक नहीं हुआ था, वो चीजें आज यहाँ पर हो रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप जनता के ऊपर छोड़िए ना, देखिए जनता क्या चाहती है। एडवोकेट्स ओपिनियनेटेड सर, आप क्या बोलते हो? चुनाव जो सीसामाऊ में है कैसा होगा? चुनाव बहुत अच्छा होगा। चुनाव में टक्कर की होगी। टक्कर तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है, तो बीजेपी कुछ भारी दिख रही है।
भारी, यहाँ पर तो 30 सालों में बीजेपी आ नहीं पाई है। लेकिन इस बार जो है उपचुनाव है ना, उपचुनाव का सरकार का बहुत फर्क पड़ता है। सरकार की योजनाओं का, योगी जी की योजनाओं का, मोदी जी की योजनाओं का, उसका असर है पब्लिक में। काम भी बहुत हुआ है समूह विधानसभा। ये उपचुनाव में निश्चित रूप से जो है भाजपा काफी बढ़त बनाए है। उसका प्रमुख कारण ये है कि इनका पिछले का सुशासन जो है वो जनता देख रही है, और सरकार की जो आयुष्मान योजना है, अंत्योदय योजना है, उज्ज्वला योजना है, और सबसे बड़ी चीज जहां से आप ये कर रहे हैं, यहाँ पे पीछे मोती झील है, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बिल्कुल पिछले 7 साल से बंद हो गई हैं। ये ऑर्डर ठीक हुआ है। कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। 112 नंबर डायल करिए 5 मिनट में। यदि इस चौराहे पे आप कोई कानपुर में बदतमीजी करेंगे तो अगले चौराहे पे योगी जी की पुलिस खड़ी मिलती है। इसको लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ये बाइपोल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब जो 2024 में बीजेपी हार गई थोड़ा, जो उसके डर से और ज्यादा काम कर रहे हैं, या आपको क्या लग रहा है 2024 में लॉस क्यों हुआ? नहीं, उस समय तो 2 बच्चों की जोड़ी आई थी, उन्होंने नए नए वादे किए, अच्छे अच्छे वादे किए। वादे को फैक्ट लोग समझ गए कि कहना तो आसान है, लेकिन उसका भुगतान करना कि हम इतने आवाज दे देंगे, इतने 100 गज हर एक को प्लॉट दे रहे थे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और आपका जो है ये मतलब ये चीजें बहुत सी झूठ के सहारा लिया, झूठ की वजह से उनको वोट मिला। मगर यहाँ और वो पर 25 थोड़े और लोगों से बात हुई, बोल रहे हैं कि बहुत डरा धमका के वोट नहीं, कोई डर ऐसा कोई माहौल नहीं है। अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, डर का कोई माहौल नहीं। आप सुबह से इस शहर में महानगर 70 लाख की आबादी में घूम रहे, कितने लोग राइफल और रिवॉल्वर दिखाई दिए? काहे का डर? सब कानून में अपने जी रहे हैं। कानून से चलिए, सर शासन अच्छा लगेगा। कानून का विरोध करेंगे, आप गलत करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे, योगी जी उसकी सजा देंगे। यहाँ पर लोग चाय पीते पीते चुनाव के बारे में बात करते हैं जी। कितना बात करते हैं? आप सुनते हो? मैं तो अपने काम पे लगा रहता हूँ, फिर भी बात तो होती रहती है। कैसा वाला? मतलब लड़ाई होती है या नहीं? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती, यहाँ तो भाईचारा रहता है। जी। अब मतलब क्या क्या सुना है? एक इंटरेस्टिंग कहानी बताओ हमें चुनाव के बारे में। अभी तो बाइपोल है। हमें तो ये लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। जी। यहाँ पर तो सपा का होल्ड है। होल्ड है तो बाबा जी ने विकास भी किया कुछ हद तक का, तो उस हिसाब से तो हमें बीजेपी आनी चाहिए। चलो, थैंक यू। चाय बनाते रहो अच्छा वाला। Yum tea and yum bun maska. I've seen that actually most parts of Uttar Pradesh, always tea is accompanied by a lovely bun which is layered, literally slathered with butter. That's, I think, their speciality. It's usually at the hangout joints that you get some young first-time voters, and they are the best to give us a little perspective on what are the real issues that prevail in Sisa Mao, which is very close to Kanpur, quite a bustling city that Kanpur is. Just a little away in Sisa Mao, these are first-time voters who will be casting their vote. They get lucky with this bipoll. If not, they have to wait a couple of more years to cast their vote here in the assembly. Let me find out on their demands that they have from the politicians, or basically what they want to change this time. Ma'am, actually we are first voter of our country. मेरा बस इतना मानना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लोकल इश्यूज़ को सुने। जैसे कि मैंने अभी जब से यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट में भाजपा ने रूल करना स्टार्ट किया, उससे पहले से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती थी। हमारे एग्ज़ाम टाइम्स में जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन करते थे, रात में बेसिकली क्या होता था कि लाइट्स कट हो जाती थी। फिर उसके बाद से हम लोगों को दिए की रोशनी वगैरह में हम लोगों को कैंडल्स वगैरह जला के पढ़ना पड़ता था। और अब जब से योगी जी आए हैं हमारे एज अ सीएम में, तो उन्होंने उसको इतना अच्छा हम लोगों को प्रेफर किया है कि अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम जा रही है। Electricity was the bone of contention which now has been largely solved, an issue that has been fixed. But what are the issues that have not been fixed? बहुत सी चीज़ें, जैसे कि कुछ जगह की रोड्स नहीं अभी सही हुई हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हम लोग जैसे कॉलेज जाते हैं, अब जैसे मेरा कॉलेज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो जाने में जाने आने में बहुत दिक्कत है। ट्रांसपोर्ट इज अ रियल इशू हियर आपके लिए? एजुकेशन सिस्टम मैम थोड़ा ख़राब है यहाँ का। जैसे सरकारी कॉलेज में टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, वो आराम से बैठा रहता है, पढ़ाता नहीं है बस। और बाकी सब आराम से सरकारी टीचर आराम से बैठा रहता है, पढ़ाता नहीं है? यस मैम। ऐसा क्यों? मैम उनको सैलरी हो रही है, काम नहीं करते हैं। सरकारी जॉब? यस मैम, बस। Okay, push the teachers to work harder. What are the issues that you face? मैम मेरा कॉलेज इशू है। कॉलेज इशू सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं
उसमें एजुकेशन को लेके, एजुकेशन के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। हमारा जो युवा है उसको डेवलपमेंट के लिए, हमारी नई पीढ़ी के विकास के लिए सरकार जो सोचेगी वही अच्छी सरकार है। एजुकेशन में आप लड़कियां ना, आई एम गोइंग टू गेट द गर्ल्स टू कम हियर अ लिटिल क्लोजर टू मी। दीज आर यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स। आप खड़े रहिए, आऊंगे आपके पास। बट टेल मी व्हाट इज योर, क्या चाहते हो आप सरकार से? ये बार पहली बार आप वोट कर रहे हो आप? मैम मेरा इशू भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है। जैसा भैया ने बोला, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, सच में वहाँ पे जो व्यवस्था होती बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मतलब हाँ, सरकार ये अच्छा है, स्कूल है, टीचर्स वेल एजुकेटेड होते हैं, पर पता नहीं पढ़ाना नहीं चाहते, अच्छे से मॉनिटर नहीं किया जाता उन्हें, ये मतलब ध्यान नहीं दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो मगर वो पढ़ाई कर नहीं रहे। जी, वो मतलब हम तो पढ़ना चाहते, बहुत मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। साफ सफाई, मतलब काफी सारे वो होते हैं मसले जो वहाँ पे नहीं ध्यान दिए जाते हैं। Once proudly known as the Manchester of the East, Kanpur sadly today stands in the shadows of its industrial glory. And right beside me here is testimony to that. The Lal Imli Cotton Mill building, as stunning as it looks, is vacant today. It really symbolizes the lost fortunes that Kanpur once had. All political parties have promised to revive the Lal Imli but have failed to. BJP in fact had it in their 2024 Lok Sabha manifesto itself. But how long are they going to take to achieve it and fulfill the promise to the people of Kanpur? That time will tell. But for the BJP, this is certainly Sisamao's bypoll here is high stakes battle. They do want to breach into the Samajwadi stronghold of Sisamao. The party has kept the seat for 30 years. Will the BJP be able to actually crack it and end that 30-year spell? Well, we've got to wait and watch. Let's see on the day of polling what the voters of Sisamao Kanpur decide. Nabila Jamal here signing off with camera person Gaurav Gupta for India Today from Kanpur, Uttar Pradesh.